सर आप ही बताओ मुझे बहुत बहुत भारी है, बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। Okay, so open this assignment number 6. The company name is Fox Control Private Limited. And can you see my screen, everybody? Hello? I No, think sir. I'm not sure. No, Okay, sir. okay. So you will be able to see it right now. ठीक है, तो ये हमारा कंपनी है फॉक्स कंट्रोल, दिस वन, Fox Control Private Limited. So keep this document open and tally together. So we are going to create a new company now. For that, go to company menu and first option is create. If you click right here, you will get this screen. Then if you go to document using Alt and Tab key, Alt key plus Tab key use. So you open this and copy this name, go to tally again, paste it right here. ऐसे ये होने के बाद एंटर प्रेस करना है एक बार. देन यू आर गोइंग टू राइट एड्रेस. तो एड्रेस के लिए देखिए यहाँ का एड्रेस चाहिए. सो यूज ऑल्ट टैब आगे फर्स्ट लाइन कॉपी, फर्स्ट लाइन कॉपी, पेस्ट इट राइट हियर. तो वी प्रेस एंटर की और डाउन arrow की enter हो गया. देन कॉपी सेकेंड लाइन, this one, go to tally again, paste it right here. Control V for pasting, Control C for copy. Again, go back to document, copy this line, paste it right here. Done. Okay. From state, select Maharashtra. There is a list of state like this. You can select Maharashtra. India will be automatic. Then you need to write pin code, which is already given on that document. So this 40009. Put right here. Paste one more time. Telephone number and mobile number are same. You can copy this and that document directly. Enter fax email ID. ये वाला email ID है. Copy, paste. Financial year begins from right here. You see that the financial year is 1 April, 1st April 21. So in tally right here, you can see the date is 1 April 22. You need to change that to 21. So if you want to go to the ending of this date, you can use left right arrow key. तो ये आपका कर्सर ऐसे जाएगा आगे आगे राइट एरो की करके. ये जो 22 है इसका 21 का होगा. एंटर. उसके बाद सेकंड डेट जो है ऑटोमेटिकली 21 हो गया. 1 अप्रैल 21. उसके बाद जस्ट प्रेस एंटर की. Enter. Now that will ask you for accept this form. Yes, that means enter key again. Then you will find these features. ये सेटिंग आ जाएंगे आगे. इसमें सिर्फ फर्स्ट सेटिंग यस रखना है, बाकी सबको नो करना है.
यहाँ पे यस सर। ये नो, ये भी नो करो। ओनली मेंटेन अकाउंट्स यस करो, बाकी ऑल सेटिंग्स कीप इट नो। एक्सेप्ट करना है एंड योर कंपनी विल बी क्रिएटेड। बट व्हेन यू कॉपी योर कंपनी नेम जब लिखा था तब आपने उसमें शायद नाम नहीं लिखा है। आपका नाम लिखा है क्या यहाँ पे? फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के आगे आपको लिखना है आपका नाम। सो नाउ आई हैव नॉट रिटन इट। अगर मुझे लिखना है तो अगेन आई गो बैक टू कंपनी मेन्यू। कंपनी मेन्यू पे चला गया, देन अल्टर ऑप्शन इज देयर। I want to alter this Fox Control Private Limited. Select it, enter. Now, this company creation page will open again. Go to the end of this name using the right arrow key. ये ऐसे करके आगे आगे चला जाएगा। At the end, write your name into bracket. So I'm going to write my name over here. Write your into your bracket. Enter, keep pressing enter key again. सेव दिस चेंज। चेंज सेव होने के बाद फिर से ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एस्केप की प्रेस करना है टू कम बैक टू पेज वेब टैब लाइक दिस। फर्स्ट क्रिएट योर कंपनी। हो गया सबका कंपनी रेडी। चेक। सर जस्ट वेट। सर जो प्रीवियस में हम लोग करके सेव किए थे वो कहाँ पे दिखेगा? सॉरी कम अगेन। लास्ट क्लास में जो हमने लेजर पोस्टिंग किए थे वो कहाँ पे दिखेगा? ओके, अगर आपको लास्ट की कंपनी जो की थी वो देखना है तो यू शुड गो टू कंपनी एंड सिलेक्ट। ये जो है ना सिलेक्ट, जो ऑलरेडी कंपनी Yes, आपने sir. की थी देखने के लिए गो टू सिलेक्ट। वंस यू गो टू सिलेक्ट यू विल सी द लिस्ट ऑफ कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज यहाँ Yes, पे yes. हैं। सो सिलेक्ट योर कंपनी नेम यस सर। एंड देन प्रेस एंटर की। ये ओपन हो जाएगा। यस सर। So if you open your previous company, you can see right here there are 3 companies open हो रही है। ये देखो फॉक्स कंट्रोल एक ओपन है मेरे लिए, ईक लर्निंग है और सुभाष चंद्र प्राइवेट लिमिटेड संदीप से। नाउ आई वांट टू वर्क ऑन दिस फॉक्स कंट्रोल, तो इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक तो ये नाम ऊपर आ जाएगा इस तरह से। जिस कंपनी का अकाउंटिंग आपको करना है उसको जस्ट डबल क्लिक कर दो। नाउ इफ आई वांट टू वर्क ऑन ईक लर्निंग आई डबल क्लिक ऑन इट, तो ये एक्टिव नेम यहाँ पे आ जाएगा। आ रहा है, चेक करो। यस सर। देख तो अभी हमें काम करना है फॉक्स कंट्रोल में। सो क्लिक ऑन दिस फॉक्स कंट्रोल, Okay, डबल sir. क्लिक करके। अभी अगर ये एक्टिव हो गया है तो सबसे पहले चेक करना है आपको करंट पीरियड क्या दिख रहा है। आपको करंट पीरियड आपके यहाँ क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। मेरे लिए ये दिख रहा है, आपका देखो क्या है। इज इट सेम? क्या है? नेम ऑफ द कंपनी है, इसके ऊपर करंट पीरियड है। व्हाट इज दैट? नोबडी इज टॉकिंग। नितेश क्या है यहाँ पे? वेयर सर? ये जो करंट पीरियड है ये क्या है आपके यहाँ? ये फॉक्स कंट्रोल एक कंपनी सेकंड। हो गया। व्हाट इज द करंट पीरियड? सर मैं अभी आगे का ही एडिट कर रहा हूँ। मैं अभी पीछे का गया ही नहीं अभी तक, जस्ट बाहर निकला ही नहीं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अंकिता ये क्या है करंट पीरियड?
व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपके टैली में क्या दिख रहा है वो बताओ। सर मेरा थोड़ा स्क्रीन शेयर करूँगी तो बताएंगे सर। अभी कर रही हो क्या? नहीं सर, मैं उस दिन किया था पर मेरा नाम नहीं आ रहा था तो मैं जान नहीं पा रही थी सर। तो अभी कंप्लीट किया तुमने ये फॉक्स कंट्रोल वाला? नहीं सर। ओके, तो भाई आई एम आस्किंग यू व्हाट इज हियर राइट हियर, आर यू कंप्यूटर पे हो क्या अभी, आर यू यूजिंग हाँ कंप्यूटर और नो? हाँ सर, हाँ सर, तो ये करंट पीरियड क्या दिख रहा है आपको आपके टैली में, ये दिख रहा है सर थोड़ा। क्या है वो, व्हाट इज दैट? सर करंट 1 अप्रैल 2022 to 31 मार्च 2023। यस दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। अभी म्यूट कर दो। तो सबको अगर ये करंट पीरियड 22 और 23 दिख रहा है तो एक्चुअली हमारा जो पेज है देखो यहाँ पे, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1/4/21 है। तो वो जो पीरियड है वो होना चाहिए 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 30 22 होना चाहिए यहाँ पे। ये जो है ना गलत लगा है ये देखो, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 होना चाहिए ये वाला। तो अभी इसको हम चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए अगर आपको करंट पीरियड या डेट चेंज करनी है देन यू आर गोइंग राइट हियर, देखो राइट साइड में यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ रहा है F2 है क्या, टू द राइट साइड F2। यस सर। ओके, सो आफ्टर दिस डेट यू कैन डायरेक्टली गो टू द राइट, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो क्लिक ऑन दैट ट्रायंगल, यू कैन सी देयर इज पीरियड ऑप्शन ओवर हियर। जो पीरियड का ऑप्शन है उसके आगे एक शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट का नाम? F1 F2 क्या है? F2। F2। F2 अब वो F2 के नीचे एक अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है देखो, ऊपर डेट के लिए F2 है, नीचे पीरियड के लिए भी F2 है, लेकिन उसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो जब सिंगल अंडरलाइन होता है तो क्या होता है शॉर्टकट, कीबोर्ड पे आल्ट की है, आल्ट एंड F2 दैट मीन्स पीरियड। आपने अगर डायरेक्ट क्लिक कर दिया ऐसे चल सकता है, जाना है पीरियड, ये देखो, तो ये चेंज पीरियड का ऑप्शन आ जाएगा। सो फ्रॉम 1/4/21 करना है यहाँ पे, लास्ट को 21 करना है क्योंकि ये कंपनी का फिनेंशियल ईयर है 21-22, ये 22 था, इसको 21 करना है। उसके बाद एंटर करना है, आगे वाला सर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ऐसे। सर मेरा कंपनी आ रहा है और डेट आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है। इसके लिए करना क्या है आपको, ये देखो ये जो ट्रायंगल है इसको क्लिक करना है और इस यहाँ पे क्लिक करना है। कैन यू शेयर योर स्क्रीन, एक बार शेयर कर दूँ मैं बता दूँगा फिर से। स्क्रीन शेयर कर दो सुबह से। साइलेंट सर। हम्म, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, गो टू टैली। सुबह से फिर से कर दो, मेरा नेटवर्क चला गया है। हाँ, अच्छा वो राइट साइड पे क्लिक करना है और क्लिक, वहाँ पे पीरियड का ऑप्शन आ रहा है देखो, उस पर क्लिक कर दो, आ रहा है यहाँ पे 1/4/21 कर दो लास्ट में, राइट एरो यूज करके वहाँ पे चाहिए 21 एंटर, नीचे वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जस्ट प्रेस एंटर। महाराष्ट्र मेटल्स फ्रॉम whom वी परचेज गुड्स, तो ये जो कंपनी है फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी महाराष्ट्र मेटल्स उनसे परचेज करती है गुड्स, तो इनका एक लेजर बना हुआ है।
जिनसे हम परचेज करते हैं वो क्या होते हैं हमारे, क्रेडिटर या डेटर? When you purchase something from anybody, service, goods, capital goods, Debtors. क्रेडिटर है। तो ये महाराष्ट्र मेटल्स कॉपी, गो टू टैली। अभी अगर आपको लेजर बनाना है तो जाना है आपको या फिर गेटवे ऑफ टैली। देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट। ये क्रिएट के लिए शॉर्टकट भी होता है, सी इसका शॉर्टकट है, अंतर के लिए ये शॉर्टकट है, जो भी हाईलाइटेड कैरेक्टर है वो उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे जाओ सी, व्हेन यू प्रेस सी ये ऐसे जाओगे आप मास्टर क्रिएशन में। उसके बाद जाना है आपको लेजर में, तो लेजर एंड कंट्रोल वी कर दो यहाँ पे, महाराष्ट्र मेटल्स जो कॉपी किया था। अभी इस लिस्ट में से अरे बोला रे, now there is a list and from this list you can select sundry creditor। ये देखो नीचे है, ये हमारा फर्स्ट लेजर में हो गया। एंटर करते रहना है इस तरह से, एक्सेप्ट यस। उसी तरह से नेक्स्ट लेजर देखो, HDFC बैंक प्रोवाइड लोन टू अस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो HDFC बैंक ने हमें लोन दिया है, तो एक लोन का अकाउंट बनेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे HDFC बैंक कॉपी, लेजर में आके कंट्रोल V कर दिया। और ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है, HDFC का ये लोन का अकाउंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे HDFC बैंक आगे लिखना है लोन, LOAN, लोन। एंटर करके लिस्ट में से जो भी रिलेवेंट ग्रुप है वो सिलेक्ट कर दो। व्हाट इज द टाइप, बैंक ओसीसी करंट से जो भी आपको लगे इसमें से सिलेक्ट कर लेना। लोन के दो टाइप है, ये देखो ये है ना, लोन्स एंड लायबिलिटी में आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन लोन के और दो टाइप है, एक सिक्योर्ड लोन है और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, ये देखो सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है HDFC बैंक प्रोवाइड लोन टू अस अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सर सिक्योर लोन, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिक्योर्ड लोन, सही है। सिलेक्ट सिक्योर्ड लोन। ये जो HDFC बैंक लोन का लेजर है, इसका ग्रुप या इसका टाइप है सिक्योर्ड लोन। अभी एंटर करते रहना है, ये हो गया आपका एक लेजर। चलो, इज एवरीबडी डूइंग दिस? कोई आगे पीछे है? आफ्टर ओपनिंग कंपनी सबसे पहले हमने पीरियड चेंज किया, चेक किया वो सही अगर है, देखो मेरा एक रॉन्ग है करंट पीरियड, आई एम गोइंग टू चेंज इट यूजिंग दिस बटन। पीरियड 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 22 होना चाहिए, क्योंकि एक साल का फिनेंशियल ईयर। आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। अभी ये करे हो जाने के बाद इन गेटवे ऑफ टैली क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट लेजर्स। गो टू क्रिएट, एंटर, देन गो टू लेजर, एंटर। नाउ हियर यू कैन राइट लेजर नेम एंड सिलेक्ट ग्रुप। So now I want to create ledger of fixed deposit receipt. कॉपी कर दिया, गोइंग बैक टू टैली, कंट्रोल V, एंटर करना है। इसका क्या होगा ग्रुप बोलो? सर इनडायरेक्ट इनकम, ये फिक्स डिपॉजिट है, FD है, FD। सर डिपॉजिट्स एसेट्स, ये है डिपॉजिट्स एंड असेट्स। जब आप किसी को डिपॉजिट देते हो, बैंक में भी रखते हो, या कभी कभी हमें अगर रेंट पे कुछ शॉप लेना है तो उसका भी डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो भी जाएगा अंडर डिपॉजिट्स एंड असेट्स, क्योंकि ये डिपॉजिट हमें वापस मिलने वाला है एज इट इज़। और FD करने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा इनकम है। सर एक डाउट था हेलो?
सर मैंने वो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट को इनडायरेक्ट इनकम कर दिया, तो उसको चेंज कैसे अभी करेंगे? मैं आगे बढ़ ठीक चुका हूँ। है, ओके। तो अगर कोई गलती से अगर प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एफडी अकाउंट कर दिया ऐसे और इसका डिपॉजिट लेना था लेकिन ले लिया ऐसे, कोई भी दूसरा ग्रुप ले लिया, डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम, अगर ऐसा आप करते हो कभी, सेव हो गया और उसको चेंज करना है तो एस्केप की करके बाहर आ जाओ, एस्केप की, एस्केप एस्केप अगेन एस्केप, आना है आपको गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले। देन यू हैव ऑप्शन अल्टर, अल्टर मतलब चेंज कर सकते हो, जैसे कंपनी का इंफॉर्मेशन अल्टर किया, अभी लेजर का अल्टर करना है तो यहाँ पे जाना है अल्टर में, अल्टर, देन गो टू लेजर्स, क्योंकि लेजर अल्टर करना है इसलिए यस सर। लेजर, जो लेजर अल्टर करना है उसका नाम सिलेक्ट कर दो, एंटर करना है, यहाँ पे उसका ग्रुप दे दो, फिर इसको एंटर यस करके सर, बाहर। ओके। अब अगर ये चेंज हो गया तो फिर से यहाँ से वापस आना पड़ेगा बाहर गेटवे ऑफ टैली में। बाहर आना है तो आपको यूज़ करना है एस्केप की, एस्केप, एस्केप कीबोर्ड पे एस्केप की है टॉप पे, फिर से वापस आ गए हम इन गेटवे ऑफ टैली। अगेन कम बैक टू क्रिएट लेजर, फिर से वी आर ऑन द सेम स्क्रीन। नाउ लेट्स गो टू आवर पेज, ये है शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, कॉपी, लेट्स गो बैक, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर। ये क्या होगा बोलो, क्या हो सकता है ये जो लिस्ट में टोटल 28 ऑप्शन है इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपने ये सब कुछ ऑलरेडी, ये किसमें होगा, रिकरिंग डिपॉजिट, व्हाट विल बी द ग्रुप, सर डिपॉजिट्स। यस डिपॉजिट्स एंड असेट्स, क्योंकि ये भी डिपॉजिट है तो ये डिपॉजिट एंड असेट सिलेक्ट कर दो, एंटर। अभी देखो एक बार हम यहाँ पे पहले लेजर का नाम लिखते हैं, उसके बाद ग्रुप लेते हैं या टाइप लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा एंटर करना पड़ता है, एंटर 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 एंटर। इससे बेटर है यस सर, आप यस यहाँ पे कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, कंट्रोल ए शॉर्टकट। सर। कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल जहाँ लिखा है वहाँ पे कंट्रोल ले मारेंगे। उसको नो कर दो, कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल नो करना है और फिर उसके बाद कंट्रोल ए, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा वो। आता इथे यायचं क्रिएटला, एंटर, त्याच्यानंतर खाली जायचं लेजरला, एंटर, आणि इथं तयार आहे, मी जसं दाखवलं तसं करत नाही। चलो रिकरिंग डिपॉजिट का हो गया, अभी शेयर्स ऑफ आईटीसी, शेयर्स ऑफ आईटीसी शॉर्टकट में न्यू लिहायला चालू कर देते नाव सर, शेयर्स ऑफ आईटीसी, यस सर। तुझ्या स्क्रीनवरती दिसतंय ते, जरा फोन इकडे दे। सारा वाजता, ठीक आहे, इकडे दिसेल व्यवस्थित. ओके, शेअर्स ऑफ आय टी सी, हे जे मी तुला इथं सांगतोय ना ते तुला तिथं लिहायचं आहे, शेअर्स ऑफ आय टी सी पहिला. सो क्या ग्रुप होगा शेयर्स ऑफ आय टी सी का? सर इन्वेस्टमेंट।
ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेना है तो एक शॉर्टकट भी है इसके लिए। नाउ यू आर यूजिंग अप एंड डाउन एरो की, ऊपर नीचे, या आप माउस यूज़ करते हो यहाँ पे, सही है। तो अगर ये लिस्ट ओपन हो रहा है तो आपको करना क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट लेना है ना यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का शुरुआत है देखो INV। तो अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग हियर INV, तो ये देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है वो। फिर आपको सिर्फ एंटर करना है। एंटर हो जाने के बाद अगेन कंट्रोल ए टू सेव करने के लिए, जो एंटर एंटर करते हैं ना, अगर कंट्रोल ए करते हो तो सेव हो रहा है वो। आणि इथून तुला घ्यायचं इन्व्हेस्ट, इथे टाईप करू शकतो. टाईप पण करू शकतेस, एंटर कर, बॅकस्पेस करेगा, आता टाईप करायचं चालू कर, INV एंटर, आता कंट्रोल ए करायचं म्हणजे ते सेव्ह होतं, कंट्रोल ए झालं। चलो नेक्स्ट लेजर इज डिबेंचर्स, ये वाला डिबेंचर्स, तू शॉर्टकटमध्ये लिहि बरं का, DEB, जास्त वेळ लागतो टाईप करायला, जास्त वेळ लागेल। हो. DEB फक्त लिहि, हे पूर्ण लिहायची काही गरज नाही। चलो ये है डिबेंचर्स, इसका क्या होगा ग्रुप, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, आपको जस्ट एंटर करना है, एंटर और कंट्रोल ए कर लो, सेव हो गया, ये हो गया सबका डिबेंचर मतलब इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ विनाटी ऑर्गेनिक, शेयर्स ऑफ विनाटी ऑर्गेनिक, ये क्या होगा, सर इन्वेस्टमेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट ही यही है। तो आपको सिर्फ कॉपी करके ले लिया, इन्वेस्टमेंट कीप इट एज इट इज, एंटर, फिर ये एंटर बहुत करना पड़ता है, इसलिए जस्ट प्रेस कंट्रोल ए टू सेव। टैली में आपको अगर कुछ भी सेव करना है तो कंट्रोल ए करते हैं, दिस इज शॉर्टकट। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स ऑफ SBI। अभी देखो, डोंट डू इट नाउ, यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला है ना, शेयर्स ऑफ ITC, डिबेंचर्स, शेयर्स ऑफ विनाटी, डिबेंचर्स ऑफ SBI, डिबेंचर्स ऑफ अदानी, शेयर्स, ये सब कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। तो मतलब हमें पहले उसका नाम भी ऊपर लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें ग्रुप लेना है। तो कभी कभी अगर एक ही ग्रुप के बहुत सारे लेजर हैं, देखो ये सब एक ही ग्रुप के हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट Yes, sir. इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो अभी जब इसको बनाते हैं तो यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना पड़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट ले लो, एंटर कर दो, नाम, इन्वेस्टमेंट, एंटर, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको पता है बहुत सारे लेजर्स है और उसका ग्रुप सेम है, तो हम उसका अलग तरीके से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी क्रिएट। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल करते हैं लेजर, देखो सिंगल लेजर बनाते हैं, सिंगल लेजर, Yes, sir. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जाते हैं क्रिएट में, क्रिएट, उसके बाद लेजर, और उसके बाद बनाते हैं हम लेजर का नाम लिखते हैं और उसका ग्रुप, लेजर का नेम, एंड देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप का मतलब है टाइप, ये सिंगल बनाने के लिए। लेकिन अभी करने क्या है, बहुत सारे लेजर एक ही ग्रुप के बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक ऑप्शन है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा एस्केप करके, गेटवे ऑफ टैली में, एस्केप, फिर से एस्केप कर दो, कम टू द गेटवे ऑफ टैली। Yes, sir. अशी बस, मला दिसतं बरं, तू ले, अशी बस, स्क्रीन असला असं नाही दिसत। अब गेटवे ऑफ टैली में आ गए, तो यहाँ पे है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में करना है आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, इसमें चला गया, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद मुझे लेजर बनाया, तो आई एम सिलेक्टिंग दिस लेजर एंड एंटर।
तो ये स्क्रीन दिखाई देगा। ऑन दिस स्क्रीन देर इज ऑप्शन कॉल्ड मल्टी मास्टर्स, यहाँ पे टू द राइट साइड मल्टी मास्टर्स। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, पहले आप देख लो फिर करो। मल्टी मास्टर पे यस जाने के सर। बाद मल्टी क्रिएट, ये देखो मल्टी क्रिएट के चला गया मैं। तो यहाँ पे दिस इज आस्किंग यू अंडर ग्रुप, तो हमारा अभी इसका ग्रुप क्या है, ये सबका ग्रुप क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखो ये जो यहाँ पे लिस्ट नहीं दिखा रहा है, आपको क्या करना है, अगर कहीं पे भी लिस्ट होता है तो इसके आगे ऐसे डॉट आता है ये वाला, वहाँ पे आपको स्पेस बार प्रेस करना है, स्पेस बार, तो ये लिस्ट ऐसे दिखता है। तो इसमें से सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, पहले ये सिलेक्ट कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट। अभी उसके लेजर का नाम जो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये देखो ये जो है लेजर है, अभी मैं कर रहा हूँ ये शेयर्स ऑफ आईटीसी वाला, इसको कॉपी कर दिया। अगेन आई एम कमिंग बैक टू टैली, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर। ये देखो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आता है, एंटर करना है। अच्छा मैंने पहले किया है इसको, तो चलो इसको निकाल देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया है इसलिए नहीं ले रहा है। सो दिस डिबेंचर्स भी बनाया, शेयर्स ऑफ यूनिटी बनाया है, डिबेंचर्स ऑफ एसबीआई कॉपी यहाँ पे बना देता हूँ, एंटर। सेकंड आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं क्योंकि ग्रुप आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। ये देखो सेकंड, एंटर। नंबर 3 शेयर्स ऑफ बंधन बैंक, कॉपी करना है, पेस्ट। अगर आप कॉपी नहीं कर पाते यू कैन राइट इट हियर, अगर नाम यहाँ पे लिखना है देखो, तो ये नाम क्या है, शेयर्स ऑफ पीएनबी। तो टैली में यू कैन डायरेक्टली राइट शेयर्स ऑफ पीएनबी, पीएनबी ऐसे लिखा, एंटर एंटर। नंबर 5 क्या है, शेयर्स ऑफ टाटा पावर्स, तो शेयर्स ऑफ टाटा पावर्स, एंटर कर दिया, तो ये अंडर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अभी ये पूरा हो जाने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर। देखो ये पूरे 5 हो गए अंडर इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट कर दो, आपका काम हो गया। चलो अभी फिर से मैं बता देता हूँ, मेरे साथ आप भी करो। अगर आपको एक ही ग्रुप के एक ही टाइप के बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो यू नीड टू फर्स्ट गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो आई एम गोइंग टू राइट इट राइट हियर आल्सो, आप भी लिख सकते हो ये। ऑलराइट, तो ये हमारा पॉइंट है, क्रिएटिंग मल्टीपल लेजर्स, यू कैन राइट दैट नोट, क्रिएटिंग मल्टीपल लेजर्स। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यू शुड गो टू गेटवे ऑफ टैली, GOT। GOT का मतलब ये है, ये जो फर्स्ट स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली, यहाँ आने के बाद आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद टैली में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर कर दिया। नाउ यू शुड गो टू दिस लेजर्स, यहाँ पे मैं फिर से लेजर्स लिख रहा हूँ, लेजर्स। इसके बाद एंटर कर दिया, देन यू विल सी दिस स्क्रीन। फिर यहाँ पे मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन है टू द राइट साइड, इसका शॉर्टकट क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टकट क्या है, एच सर। एच, और एच के नीचे क्या है, एक अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है आल्ट। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर भी ओपन हो जाएगा, एस्केप करके बाहर आ गया। अगर मुझे वहाँ पे जाना है विथ शॉर्टकट आल्ट की एच की, फिर से वही ओपन होता है। तो मल्टी मास्टर्स में जाना है आपको, यहाँ मल्टी मास्टर्स, इसका शॉर्टकट है आल्ट प्लस एच। मल्टी प्लस के मास्टर्स के बाद आपको जाना है वहाँ पे मल्टी क्रिएट में,
क्रिएट। अभी इधर तक आप चले गए। इसके बाद आपको पहले सिलेक्ट ग्रुप, जो भी ग्रुप का आपको अकाउंट बनाना है तो उसका ग्रुप सिलेक्ट करना है। ग्रुप सिलेक्ट, देन राइट लेजर नेम्स, LEDGUR नेम्स। तो ये प्रोसेस है टू क्रिएट मल्टीपल लेजर्स। चलो अब आप लोग करते हैं, साथ में करते हैं। चलो पहले तो आप गेटवे टेली में आ जाओ, गेटवे टैली। इसके बाद आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो उसका शॉर्टकट है एच। तो आप अगर एच भी प्रेस करते हो वहाँ पे स्किप, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स का शॉर्टकट एच है, एच। तो एच क्लिक कर दो तो आप जाओगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स का स्क्रीन में। नाउ लेजर में जाना है तो एंटर की प्रेस करना है, एंटर। नाउ यू नीड टू गो टू मल्टी मास्टर्स। तो ये मल्टी मास्टर को आप क्लिक कर सकते हो ऐसे, और इसमें जाना है मल्टी क्रिएट में, मल्टी क्रिएट। नाउ अंडर ग्रुप, यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट करना है। यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन्वेस्टमेंट और जस्ट प्रेस स्पेस बार की पे करो। यहाँ पे स्पेस बार करना है तो लिस्ट दिखाई देगी ऐसे। इसमें सिलेक्ट कर दो इन्वेस्टमेंट, एंटर करना है। अभी आप लेजर के नाम लिखना शुरू करो यहाँ पे, जो है यहाँ पे कर दिया ये। चलो आप सब लोग भी अभी ये बनाओ। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब ट्रक, ये भी फिक्स एसेट है कंपनी के लिए। एयर कंडीशनर, और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। ये सब बना, ये किसमें आएगा? Indirect expenses. Indirect expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी का लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। अगर आपने गूगल शीट में सब कुछ किया होता तो ये अभी बहुत इजी होगा आपके लिए। चलो सैलरी हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है। तो ये क्या होगा? Indirect expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टेक डायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट। कंट्रोल ए, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है कैरी आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनवर्ड डायरेक्ट है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। उसके बाद जॉब वर्क एक्सपेंसेस। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बोलो। आपने लिखा भी है कहीं पे? सर अभी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको एक ही साथ कर देने से होगा। हाँ कर सकते हो, यस कोई इनडायरेक्ट भी है डायरेक्ट भी है तो एक साथ कर सकते हो। जॉब वर्क एक्सपेंसेस, जॉब वर्क एक्सपेंस क्या है बोलोगे? डायरेक्ट ये या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ठीक है, ये है डायरेक्ट तो डायरेक्ट है। तो आपको सिर्फ पहले डायरेक्ट वाले सब कुछ खत्म कर दो, उसके बाद इनडायरेक्ट वाले अगर एक साथ करना है तो। मतलब यहाँ पे अभी देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट है, बोनस इनडायरेक्ट, कमीशन इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन इनडायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट, पावर एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, फैक्ट्री रिपेयर मेंटेनेंस
ये भी डायरेक्ट है। ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट, बहुत सारे इनडायरेक्ट वाले हैं यहाँ पे। तो मैं मल्टी में जा Yes. सकता हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाले करेंगे, फिर इनडायरेक्ट वाले कर देंगे। तो कम बैक टू गेटवे ऑफ टैली एंड गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स। मल्टी मास्टर्स को जाना है तो कंट्रोल एच करना है, आल्ट एच, सॉरी, आल्ट एच, मल्टी क्रिएट, मल्टी क्रिएट। उसके बाद पहले ले लो डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रुप सेलेक्ट कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस वाले सब कुछ देख लेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट एक्सपेंस में पहले तो मैंने जॉब वर्क का कर दिया है। इसमें आ रहा है ये जो पावर एक्सपेंसेस है, जनरली ये फैक्ट्री के लिए होता है, इसीलिए पावर एक्सपेंसेस एक डायरेक्ट में आ जाएगा। एंटर। इसके बाद फैक्ट्री का मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके बाद ऑफिस डेप्रिसिएशन, टेलीफोन, ब्रेकफास्ट, फ्यूल एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट है। फ्यूल, तो ये तीन अभी डायरेक्ट होता है। पावर, factory repair and fuel expenses are direct expenses and all others are indirect. चलो तो फिर इसको मैं फिर से मल्टी मास्टर्स में जाके मल्टी क्रिएट, सेलेक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अभी जो बाकी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये वाला, ये चला गया यहाँ पे। बोनस टू एम्प्लॉइज, कमीशन टू सेल्स। हेलो सर। यस, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीन तीन ठो होगा ना कौन सा? सर? पावर एक्सपेंसेस, हाँ, उसका क्या बोलो ना, डायरेक्ट। डायरेक्ट में पावर एक्सपेंसेस और फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। यस, बाकी सब इनडायरेक्ट वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब हम लेजर्स बना रहे हैं अभी। ट्रांजैक्शन बाद में होगा सर इसका। यस, कैन यू रिपीट डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कम अगेन। सर कैन यू रिपीट डायरेक्ट एक्सपेंसेस? रिपेयर मतलब? सर रिपीट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो इसीलिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, यू आर आस्किंग मी? यस सर, यस सर। ओके, एक बार इसको खत्म करके देना दोस्तों। टेलीफोन और इंटरनेट चार्ज, चलो ये देखो मेरा हो गया। All these are indirect expenses. Job work income is direct income. So selected
ये बन गया। अभी मल्टी क्रिएट के लिए फिर से वापस जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर Alt H करके मल्टी मास्टर में जा सकते हैं। Alt H मल्टी क्रिएट एंटर सिलेक्ट इनडायरेक्ट इनकम एज अ ग्रुप ओवर हियर और बाकी जो लेजर्स है वो सब लेजर्स है इनडायरेक्ट इनकम के यहाँ पे डिविडेंड रिसीव कॉपी इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज जो बैंक में हमने एफडी किया था ना इसका ब्याज मिलेगा। फैक्ट्री स्क्रैप सेल्स उसके बाद ऑफिस स्क्रैप सेल्स प्रोविजन रिसीव ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी इनकम्स सॉरी क्योंकि बिजनेस में 4 ही ऑप्शन होते हैं असेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले ये असेट्स दिखा रहा है बिजनेस के देन इट विल शो यू दिस लायबिलिटीज आफ्टर लायबिलिटीज देयर इज एक्सपेंस एंड देन इनकम। तो उसमें हमने फिर से क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले देखेंगे असेट्स। देखो असेट में 2 ऑप्शन होते हैं करंट असेट फिक्स्ड असेट। तो अभी करंट में देखो करंट में आता है बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड। तो यहाँ पे एक कैश का अकाउंट ऑलरेडी टैली में बनता है। करंट असेट में ये देखो डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं। देखो डिपॉजिट्स में हमने एफडीआर का अकाउंट बनाया था रिकरिंग डिपॉजिट बनाया था। लोन तो किसी को दिया नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आया। देखो फिक्स्ड असेट में एयर कंडीशनर कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल जो भी बनाया था ये यहाँ पे आ गया। अगेन इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप बना है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें डिबेंचर्स एसबीआई ये सब कुछ दिखा रहा है। ये सब हमारा असेट है। अब असेट खत्म होने के बाद फिर जो आ रहा है लाइबिलिटीज फॉर दिस कंपनी। इसमें सबसे ये देखो सिक्योर्ड लोन के अंडर है एचडीएफसी लोन का। ये हमारा लाइबिलिटी है बैंक से लोन लिया वापस करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में यहाँ पे आ रहा है महाराष्ट्र मेटल्स क्योंकि उनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमारा लाइबिलिटी है। सो यहाँ पे आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद है एक्सपेंसेस। उसमें 2 टाइप है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट वाले सब यहाँ पे आ गए इनडायरेक्ट वाले यहाँ पे आ गए। इसके बाद जाएगा इनकम। तो डायरेक्ट इनकम वाला एक ही है बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम है। सो इस तरह से आपको ऑल डिटेल्स दिखते हैं। आ गया समझ में? आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? अभी आपको ये जो रिपोर्ट है प्रिंट करना है। टैली ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपको जो भी अगर आज अच्छे से काम करते हो डेटा एंट्री तो इसका परफेक्ट रिपोर्ट बन जाता है। तो हमें अभी ये जो लिस्ट ऑफ लेजर का रिपोर्ट प्रिंट करना है उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देयर इज ऑप्शन कॉल्ड प्रिंट ओवर हियर। जहाँ पे डेट दिख रहा है ना यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। पहले देख लो बाद में आप करो। प्रिंट क्लिक कर दिया यहाँ पे करंट का ऑप्शन आ गया। करंट मतलब ये जो भी करंट पेज है उसको प्रिंट करना है। यस तो देयर आर 3 ऑप्शंस कॉन्फ़िगर प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू कर देता हूँ तो ये प्रीव्यू दिखाई देगा इस तरह से। देखो प्रीव्यू आ गया जूम किया मैंने यहाँ पे तो ऐसे दिख जाता है। वही सेम रिपोर्ट इसको हम प्रिंटर से प्रिंट करके देख सकते हैं हमारे कंपनी के लेजर्स क्या क्या है इस तरह से। तो अगेन आई एम कमिंग बैक। एक बार एस्केप करके मैं वापस आ जाता हूँ। एस्केप एस्केप सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेजर्स देन प्रिंट करंट देन प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे गो टू प्रिंट। तो अभी इट विल आस्क यू देयर इज अ डायलॉग बॉक्स। ये आप पूछेगा कि ये जो प्रिंट करना है तो इसका एक पीडीएफ फाइल बनेगा क्योंकि प्रिंटर यहाँ कनेक्टेड नहीं है। तो पीडीएफ कहाँ पे स्टोर करना है तो पहले आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। फाइल का नाम यहाँ पे देना है। अभी ये फाइल कंपनी का फॉक्स कंट्रोल तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉक्स कंट्रोल नाम दिया। फॉक्स कंट्रोल ब्रैकेट में आपका नाम होगा क्योंकि ये आपने बनाया है इसलिए इस तरह से एंड सेव कर दिया। तो ये अभी इसका रिपोर्ट बन गया। कहाँ पे है
इफ़ आई गो टू दिस माई कंप्यूटर, ये मेरा माई कंप्यूटर का आइकॉन है, मैंने उसको सेव किया था डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे देखो फॉक्स कंट्रोल का ये पीडीएफ बन गया। डबल क्लिक किया तो आई कैन सी इट लाइक दिस। इसको आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया है? चलो तो मेरे साथ अभी आप कर लो। Please, यस, sir, once again, please. ओके। सबसे पहले आप चले जाइए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, देन लेजर्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गया। इज इट ओपन फॉर यू? Yes, sir. गो टू प्रिंट कमांड, राइट हियर प्रिंट का कमांड है ऊपर, उस पर क्लिक करना है। यू विल सी 3 ऑप्शंस, करंट, अदर्स, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से करंट सिलेक्ट कर दो, करंट, Yes. देन सिलेक्ट प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये कंपनी का नाम है फॉक्स कंट्रोल, तो नाम लिखो फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्स कंट्रोल। सर मेरे इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। विल सी फॉक्स कंट्रोल ब्रैकेट में आपका नाम लिखना है यहाँ पे, और इसको सेव कर देना है। कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में, तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स राइट हियर। चेक करो आप डॉक्यूमेंट्स में या नहीं। जनरल ये ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। Yes, sir. चलो अभी ये फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड आपका नाम लिखा ब्रैकेट में, देन क्लिक ऑन सेव, तो ये सेव हो जाएगा फाइल। अगर आपको देखना है तो माय कंप्यूटर में जाके यू कैन डबल क्लिक इट। सर आमच्याकडे डायलॉग बॉक्स चालू नाही होत आहे। प्रज्वल, ओके, शेयर योर स्क्रीन। उसके लिए फर्स्ट कम टू गेटवे ऑफ टैली, देन गो टू कंपनी मेनू, देन सिलेक्ट, अगर कंपनी आपने बनाया है तो ये आएगा यहाँ पे, सिलेक्ट को जाना है, सिलेक्ट एसके कॉर्पोरेशन। ये देखो यहाँ पे एसके कॉर्पोरेशन है मेरे, एसके कॉर्पोरेशन, एंटर, तो एसके कॉर्पोरेशन कंपनी ओपन हो गया। अभी इसका भी मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, सो आई एम गोइंग टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स ऑलरेडी यहाँ पे है, आपने अगर किया होगा तो होगा, अभी मेरे भी इसमें नहीं दिखा रहा, तो आई विल ओपन सेकेंड वाला ऑप्शन, स्किप, देखो कंपनी, सिलेक्ट बैक एसके कॉर्पोरेशन, तो आई हैव 2 कंपनीज, आई एम सेलेक्टिंग नंबर 2, मे बी इसमें होगा लेजर्स, तो ये कंपनी अभी एक्टिव है एसके कॉर्पोरेशन। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चला गया मैं, लेजर्स, तो ये देखो यहाँ पे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं। सो नाउ आई कैन प्रिंट दिस वन ऑल्सो, प्रिंट करंट, प्रिंट, तो ये है एसके कॉर्पोरेशन, और ब्रैकेट में आपका नाम, ब्रैकेट कंप्लीट, ये भी डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दो। सो यू विल गेट 2 पीडीएफ बन गए अभी। तो ये फॉक्स कंट्रोल का एक आ गया और एसके का आ गया, ये आ जाएगा अभी मेरे। किधर गए इसके, ये देखो इसके कॉर्प और फॉक्स कंट्रोल दोनों आ गए पीडीएफ मेरे लिए। अब ये दोनों पीडीएफ आपको क्लासरूम में अपलोड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्लासरूम में, कौन आ रहा है गूगल क्लासरूम? चलो ये जो असाइनमेंट 5 एंड 6 था, इसको अगर मैंने ओपन कर दिया एंड व्यू असाइनमेंट, अभी आपको इसको अपलोड करना होगा, अपलोड, तो इसके लिए somebody else should share your screen, so I'll be able to tell you। कौन कर रहा है? अंकिता, share your screen। यस सर, मेरा हो गया। हाँ, share your screen now। यस सर। এটা তো
हाँ, गो टू क्लासरूम। नहीं मेरा सेव नहीं हुआ है। क्या सेव नहीं हुआ है? ये दोनों पीडीएफ बनाए ना आपने? यस सर। ये इधर ऐड हो क्लिक करो, अपलोड। तो ऊपर क्या फाइल पीडीएफ फाइल तुझ्या फोनवर असायला पाहिजे, तिथे अपलोड करता येईल. नाही किंवा तू जर इथून कारण का करणार माझं असेल, कसं होतं मग एक काम करा. लॅपटॉप आहे ना दुसरं घेतात असं होतं. एक काम कर, तुझे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता. हाँ ठीक है, व्यू असाइनमेंट को जाओ, व्यू असाइनमेंट. अभी यहाँ पे ऐड और क्रिएट ऊपर है ना, ऐड और क्रिएट. यस यहाँ पे सर। वो दोनों फाइल अटैच कर दो. क्लिक ऑन दैट. हाँ, फाइल, ओके, ब्राउज, गो टू डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट, सेव Select. नहीं हुआ। सेव हुआ होगा सब, कहीं पे जो हुआ होगा ना. नहीं सर। चलो चेक करते हैं. गो बैक टू टैली. टैली में चले जाओ. इसको ऐसे रहने दो. हाँ, अभी फिर से कर दो प्रिंट ऑप्शन. गो टू प्रिंट, करंट. ये देखो, आपको प्रिंटर चेंज करना पड़ेगा. गो टू कॉन्फ़िगर. हाँ, वहाँ पे नीचे ना प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा है, एनी डेस्क प्रिंटर. इस पे उधर जाओ. इधर नहीं। थोड़ा ऊपर. वो वहाँ पे है ना. हाँ यस, क्लिक, एंटर की प्रेस कर दो. सिलेक्ट कर दो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये वाला. एंटर. ओके. कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए टू सेव. कंट्रोल ए. अभी गो टू प्रिंट अगेन. हाँ, अभी आ गया. इसको नाम दे दो अभी, एसके कॉर्पोरेशन एंड योर नेम. ब्रैकेट में योर नेम. अच्छा। राइट योर नेम देयर. ओके, कैमरा. चलो ये हो गया सेव. अभी ये दूसरा वाला भी कर दो. गो बैक टू गेटवे ऑफ टैली. गेटवे ऑफ टैली. टैली में ही जाओ. क्लिक ऑन टैली. एस्केप. अभी जो कंपनी ओपन था ना, फॉक्स कंट्रोल वाला ओपन कर दो. गो टू कंपनी मेनू. कंपनी। हाँ, सिलेक्ट. ओके, सो वेयर इज योर दैट कंपनी? इसके कॉर्पोरेशन से होगा, कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगा. चलो अभी ये तो देखते हैं, बताऊंगा कैसे करना है. अभी गो बैक टू क्लासरूम में चले जाओ. ओके, यहाँ पे गो टू डॉक्युमेंट्स अगेन, ब्राउज. फक्त तेवढाच पाहिजे. एवढंच घेतलं आणि घेतलं. याची काही गरज नाही, मला ते दिसायला पाहिजे ना. इसके कॉर्पोरेशन है, देखो वहाँ पे इसके. यस, ओपन. ये अटैच हो जाएगा. चलो ये हो गया एक पीडीएफ. उसके बाद आपको करना है ऐड और क्रिएट करके दूसरा फाइल. ठीक देन है। आफ्टर दिस क्लिक ऑन हैंडिंग. बाद में, अभी नहीं. ठीक है ठीक है, सर। सबको समझ में आया है कैसे करना है? अदर्स पूर्ण आहे. Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes,